Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is P block elements. This is one of the most important chapter of your syllabus. ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 16, 17 ਤੇ 18 ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੁੱਪ 15 ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਫਰੋਮ ਦ ਸਿਲੇਬਸ in plus 2 class. So in this chapter we include group 16, group 17 and group 18. Firstly you should know what are p block elements. p block elements ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ p orbitals ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇ, that are called p block elements. So in those elements in which last electron enters the p orbital are called p block elements. ठीक है, for example oxygen, we can take the example of oxygen with atomic number 8. So what would be the configuration of oxygen? 1s2, 2s2, 2p4. Now see, the last electron is present in p orbital, so it is considered as a p block element. Clear? We can take another example. For example, we have chlorine with atomic number 17. Now what would be the configuration of chlorine? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Now see, the last electron enters in the p orbital, so it would be considered as a p block element. So p block elements ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ p orbital ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇ। So the general electronic configuration for p block elements ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ क्या बनेगी? This would be ns2 np 1 to 6. This is the general electronic configuration for p block elements. ठीक है, ns2 n कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता, np 1 to 6, 1 to 6 के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप बन जाते। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट वुड बी 13, क्योंकि जो p ब्लॉक एलिमेंट्स है इट इंक्लूड्स ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 p ब्लॉक एलिमेंट्स। हालांकि इन द बिगनिंग ऑफ चैप्टर आई हैव टोल्ड यू कि ਅਸੀਂ ग्रुप 16, 17 ਤੇ 18 ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੇ ਤੇ 15th ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ 16, 17 ਤੇ 18 ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 13 ਤੋਂ 18 ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, so this was about the general introduction related to p block elements. So today now we will start group number 16. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 16 ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਨਾਓ ਗਰੁੱਪ 16 ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਆਕਸੀਜਨ, ਸਲਫਰ, ਸਿਲੇਨੀਅਮ, ਟੈਰੂਲੀਨੀਅਮ ਤੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਗਰੁੱਪ 16। ਠੀਕ ਹੈ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम ते पोलोनियम। ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8, सल्फर 16, सिलेनियम 34, टेलुरियम 52, पोलोनियम 84। ठीक है, we can remember these atomic numbers with the help of magic numbers 2, 8, 8, 18, 18. See, this is 18 plus 8 16 plus 18 34 plus 18 52 plus 32 84. You can remember, you don't need to remember these,
बट ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ, ਸਲਫਰ ਤੇ ਸਿਲੇਨੀਅਮ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੋਜਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਲਕੇਜਨਸ ਔਰ ਕੈਲਕੋਜਨਸ। Now what does it mean? It means ore forming। और बारे तुसी पिछली क्लास च भी पढ़िया, पिछले सॉरी चैप्टर च भी पढ़िया और फॉर्मिंग। ज़्यादातर जिहड़े औरस है ਉਹ ਆਕਸਾਈਡ ਸਲਫਾਈਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਆਕਸੀਜਨ, ਸਲਫਰ, ਸਿਲੇਨੀਅਮ, ਟੈਲੂਰੀਅਮ ਤੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਓ ਸ ਸੇ ਟੇਪੋ। ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ 'ਚ ਅਕਰ ਕਰਦਾ। In free state O2, you know that O2 is an important component of air and it comprises 21% by volume of air। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਸ ਅਬੰਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਿਓਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬੰਡੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈ। Now let's start with the properties of group 16 elements. The first is electronic configuration. Let's see, write the electronic configuration. Oxygen 1s2 2s2 2p4, sulfur 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, selenium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4. Now see clearly, oxygen outer configuration 2s2 2p4, sulfur outer configuration 3s2 3p4, selenium outer configuration 4s2 4p4. Now what would be the outer configuration of tellurium? 5s2 5p4. And what about polonium? That would be 6s2 6p4. We are mainly concerned with the outer electronic configuration, क्योंकि सानू पता है chemical reactions या chemical properties से किने participate करना, बाहर दे एलिमेंट ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट करना, बाहर दे शैल ने पार्टिसिपेट करना। सो वी आर कंसर्न विद आउटर कन्फिगेशन। हुण अगर असी इस कन्फिगेशन नू जनरलाइज करिए तो जनरल कन्फिगेशन क्या बनेगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन ऑफ ग्रुप 16 क्या बनेगी, देखो 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4. So it would be ns2 np4. So this is the general electronic configuration of group 16 elements. Now let's start with the atomic and physical properties of group 16 elements. The first property is atomic and ionic radii. Ionic radii. As we know that along the period size क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, decrease ਹੁੰਦਾ। So it means ਇਹਨਾਂ ਦਾ size ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ group 15 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ डाउन द ग्रुप है वो साइज क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, that is due to increase in number of shells। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, ग्रुप 16 एलिमेंट्स ਜਿਹੜੇ है they have smaller size than group 15 elements. Why? Because along the period size decrease ਹੁੰਦਾ due to increase in effective nuclear charge along the period। ठीक है जी, ये तुसी 11th क्लास स्टडी कीता वा, इहदे बारे ज़्यादा डिटेल करन दी वैसे ज़रूरत नहीं है। एंड डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। ठीक है, ड्यू टू
increase in number of shells and decrease in effective nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज घटता है जिदा जिदा साइज बढ़ता तो उसके करके साइज जोड़ा है वो क्या हो रहा डिक्रीज हो रहा. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. नाउ व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होंदी है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शैल ऑफ एन एलिमेंट एटम. ठीक है, किसी एटम के सब तो बाहर के शैल चों इलैक्ट्रॉन रिमूव करने वास्ते जिन्नी एनर्जी चाहिए उन्होंने असीं क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंड यू नो दैट कि आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज पर डिपेंड करती है, बट साइज तो इलावा वो होर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है. अगर असी रूल के अकॉर्डिंगली चलीए तो अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज होंदा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए. तो असी एक्सपैक्ट करते कि जी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 16 एलीमेंट्स की वो अलॉन्ग द वो जी है वो ग्रुप 15 नालों ज़्यादा होएगी. क्यों? क्योंकि ग्रुप 16 का साइज जोड़ा है वो छोटा होंदा. बट दिस इज़ नॉट द केस. आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ साइज पर डिपेंड नहीं करती, वो न्यूक्लियर चार्ज पर, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर, पेनिट्रेशन पावर पर भी डिपेंड करती है. अगर असी ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन का कंपैरिजन करिए, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होंदा? 7, 1s2 2s2 2p3. ठीक है. एंड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4. हुण अगर असी इनू ऑर्बिटल फॉर्म दे विच लिखिए तो देखो 2s एंड 2p. यू हैव स्टडीड दिस इन 11th क्लास ऑल्सो. 2p इज दिस. ठीक है. नाउ ऑक्सीजन 2s 2p4. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स? क्या डिफरेंस है? यह हाफ फिल्ड है, यह पार्शियली फिल्ड है. तो हाफ फिल्ड तो पार्शियल फिल्ड चो ज़्यादा स्टेबल कौन होंदा? हाफ फिल्ड. हाफ फिल्ड मोर स्टेबल है. तो अगर यह ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियस है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होएगी? हाई होएगी. जबकि यह लैस स्टेबल होया, लैस स्टेबल है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होएगी? लोअर होएगी. सो ग्रुप 15 के जोड़े एलीमेंट्स उन्होंने सारे की हाफ फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आउटर शैल दे विच. ऑक्सीजन सारे पार्शियली फिल्ड है. तो ऑब्वियसली ग्रुप 15 के एलीमेंट्स की जी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होएगी एज कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट बिकॉज दे पोजेस द हाफ फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. बट दिस इज द केस फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. बट अगर असी सैकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की गल करिए, सैकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस के विच नाइट्रोजन चो एक इलैक्ट्रॉन निकल गया, एन पॉजिटिव हो गया. कितने इलैक्ट्रॉन हो गए? 6 इलैक्ट्रॉन. 6 इलैक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2. हुण ये 2p2 है. हुण ये खुद क्या बन गई? पार्शियली फिल्ड हो गई. बट अगर असी ऑक्सीजन की गल करिए, ऑक्सीजन च एक इलैक्ट्रॉन रिमूव करता वो पॉजिटिव, 7 इलैक्ट्रॉन रह गए. 1s2 2s2 2p3. हुण यह क्या बन गई? हाफ फील्ड बन गई. तो ऑब्वियसली इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी. इट मीनस फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जी ग्रुप 15 एलीमेंट्स की है वो ज़्यादा है, ऑक्सीजन या ग्रुप 16 एलीमेंट्स की घट है. बट सैकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जी है वो ग्रुप 16 एलीमेंट्स की ज़्यादा है, 15 की घट है. हालांकि ऑक्सीजन या ग्रुप 16 एलीमेंट का साइज काफ़ी छोटा है तो इन्हों की आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई होंगी है. दे हैव वेरी लैस टेंडेंसी टू लूज द इलैक्ट्रॉन. ठीक है. यह तो चलो 15 ते 16 का कंपैरिजन है तो असी फर्स्ट ते सैकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज की गल कर रहे. अदरवाइज ये एलीमेंट्स इलैक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते. दे वॉन्ट टू गेन द इलैक्ट्रॉन नॉट टू लूज द इलैक्ट्रॉन. ठीक है. वैसे इन्हों की आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है बट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट is lower than that of 15 elements and second ionization enthalpy is higher for group 16 element than that of group 15 element. Next property is electron
gain enthalpy. Now what is electron gain enthalpy? It is the energy change when electron is added to an isolated gaseous atom. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਗੈਸੀਅਸ ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਗਰੁੱਪ 16 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ NS2NP4। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ 16 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਓਨਲੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਸ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਅਰ ਆਕਟੇਟ। ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਲੋ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 11th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਸਾइज पर डिपेंड करती। जिन्ना साइज छोटा होगा उन्ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलैक्ट्रॉन पर ज़्यादा होएगा, तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन्स में अपने वाल अट्रैक्ट करेगी तो ईजिली गेन कर सकती। बट ऑक्सीजन जिहड़ा है उसका साइज सब तो छोटा है, तो असीं एक्सपैक्ट करते कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सब तो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब तो ज़्यादा होएगी। बट दिस इज़ नॉट द केस। ऑक्सीजन की इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिहड़ी है वो इस ग्रुप च सब तो घट नैगेटिव है। मीन सब तो घट एनर्जी जिहड़ी है वो रिलीज़ होंदी हैगी। हुण उहदा रीज़न क्या है? उहदा रीज़न भी तुसीं 11th क्लास च पढ़िया वा है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है। साइज छोटा होने करके इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस जिहड़ियां 2p सबशेल्स दे विच है वो ज़्यादा है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4। बाहर दा शैल सैकेंड है, ऑर्बिटल p है। जो इलैक्ट्रॉन ऐड करना तो वो इसे p ऑर्बिटल दे विच ऐड होना। बट इत्थे क्या होएगा? इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस क्रिएट होंगे। जो न्यू इलैक्ट्रॉन आएगा वो इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस जिहड़ियां इहनूं क्या बना दूंगियां? अनस्टेबल कर दूंगियां। इस करके जिहड़ा इनकमिंग इलैक्ट्रॉन है जिन्हें एंटर करना हैगा वो एनी ईजिली जिहड़ा है एक्सैप्ट नहीं हुंदा जिन्ना कि बाकी केसिस हो जाता। यू हैव स्टडीड अबाउट दिस इन केस ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। थानू क्वेश्चन था 11th क्लास दे विच कि फ्लोरीन ते क्लोरीन चो किहदी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हुंदी ते क्यों। उत्थे असीं लिखदे थे कि क्लोरीन दी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हुंदी क्योंकि फ्लोरीन दे विच 2p ऑर्बिटल है। इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस जिहड़ियां ज़्यादा हुंदियां हैगियां। सो दिस इज़ द सेम केस। तो ऑक्सीजन की जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लीस्ट हुंदी बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। सो ऑक्सीजन हैज़ लीस्ट नेगेटिव इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड इंटर इलैक्ट्रॉनिक repulsions in 2p orbitals. So this is the case for electron gain enthalpy. Now the next property is electronegativity. Electronegativity क्या है? It is a tendency to attract a shared pair of electron toward itself. ठीक है, शेयर्ड पेयर ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ग्रुप 16 एलिमेंट साइज काफ़ी छोटा है। इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिहड़ी है वो हाईली नैगेटिव है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई है, तो इहदे करके इन्हां दी जिहड़ी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है दैट इज़ क्वाइट हाई। ठीक है, ग्रुप 15 नालों भी हाई हुंदी। ऑक्सीजन इज़ द सैकेंड मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट आफ्टर फ्लोरीन। ऑक्सीजन जिहड़ा है वो सैकेंड इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ज़्यादा हो जाती क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होएगा? ज़्यादा होएगा। सब तो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ऑक्सीजन दी है। डाउन द ग्रुप इलैक्ट्रोनैगेटिविटी क्या होंदी जाती? डिक्रीज होंदी जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज जिहड़ा है वो इनक्रीज होंदा जाता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इलैक्ट्रोनैगेटिविटी एंड रिमेंबर ओ एथर नू इलैक्ट्रोनैगेटिविटी क्या हो रही? डिक्रीजेस। ठीक है, अदरवाइज ग्रुप 16 एलिमेंट्स
are more electronegative than group 15 elements due to smaller size.